Hi and a very welcome back to all the students. Um, Today in this lecture we are going to understand about the topic of bonsai, right? So I think all of you are already aware of the term bonsai, right? We all know what is bonsai, but still in this lecture we will understand the basics about bonsai and what are the various types of bonsai, that is what are the various styles of bonsai that are used, and we will also look into what are the methods that are used in making of bonsai. So today we will cover the basics of bonsai and the style of bonsai, the various styles that in which bonsai can be made, and then in the next lecture we will understand about the methods used in making bonsai, right? So bonsai is like nowadays a common element of garden, right? Even it is kept as indoor plants also, and also these has become an element of big gardens, public gardens also, right? So therefore being botanist and being horticulture students, we need to know that what is bonsai and how is it made, right? So we start first of all with the basics of bonsai, right? So bonsai is actually, when we split the term into two, we can say bon means shallow container or tray, and sai means to grow, right? So when a plant is grown in a shallow container or a tray, then it is called bonsai, right? Bon का मतलब होता है shallow container, मतलब ऐसा कंटेनर जो बहुत डीप ना हो, एंड साई का मीनिंग होता है ग्रो. सो बोनसाई लिटरली मीन्स दैट टू ग्रो प्लांट इन अ shallow container. And Japanese art or technique of dwarfing tree. Now this art is actually called Japanese art or technique. एक्चुअली ये जापानीज़ आर्ट माना जाता है, बट इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है. Actually, this art, Chinese had started making miniature landscapes 2000 years ago, right? So Chinese जो थे उन्होंने पहले मिनिएचर लैंडस्केप बनाना स्टार्ट किया था. मिनिएचर लैंडस्केप मतलब बहुत छोटा सा लैंडस्केप बनाते हैं स्टडी पर्पस के लिए, तो वो चाइनीज़ लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट? एंड दैट ऑल्सो 2000 ईयर्स अगो, राइट? सो बेसिक जो ओरिजिन है दैट इज़ चाइनीज़ ओरिजिन, बट ड्यूरिंग द कामाकुरा पीरियड दैट इज़ 700 ईयर्स अगो, इस पीरियड के वक्त जापानीज कॉपीड द आर्ट फॉर्म, राइट? बट देयर वॉज अ डिफरेंस. दे कॉपीड द आर्ट फॉर्म वेयर अ न्यू जापानीज स्टाइल एमर्ज्ड. तो उन्होंने इस मिनिएचर लैंडस्केप के आर्ट फॉर्म को कॉपी किया एंड एक नया जापानीज स्टाइल एमर्ज हुआ where they developed bonsai tree and not the landscapes. So what was the difference? That they developed they developed bonsai tree rather than bonsai landscapes, right? तो उन्होंने क्या किया, चाइनीज़ जो थे वो मिनिएचर लैंडस्केप बनाते थे. लैंडस्केप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम गार्डन में पूरा लैंडस्केप देते हैं, राइट? जैसे कोई रॉक लैंडस्केप हो गया या तो फिर पॉन्ड लैंडस्केप हो गया, तो एक पूरा लैंडस्केप चाइनीज़ क्रिएट करते थे, मिनिएचर लैंडस्केप. बट जापानीज़ लोगों ने उस स्टाइल का कॉपी करके व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड डेवलपिंग बोनसाई ट्री. उन्होंने बोनसाई ट्री बनाना स्टार्ट किया, मतलब बड़े जो ट्रीज़ होते हैं उनकी छोटी साइज़ का ट्री बनाना स्टार्ट किया, एंड नॉट द लैंडस्केप्स. मतलब उन्होंने लैंडस्केप मिनिएचर बनाने में ध्यान नहीं दिया. दे डेवलप बोनसाई ट्री, एंड दीज ट्रीज आर व्हाट वी टुडे कॉल एज बोनसाई. और ये जो ट्री है इसको हम आज जो हम बोनसाई बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द ट्रीज that is actually developed by bonsai people, that is actually developed by Japanese people, right? So
what we need to understand that the word is actually of Japanese origin. अब ये जो word है bonsai, ये चाइनीज़ टाइम पे यूज़ नहीं होता था बिकॉज चाइनीज़ पीपल यूज टू मेक मिनिएचर लैंडस्केप, राइट. सो द वर्ड इज़ एक्चुअली जापानीज़. ये वर्ड तब आया जब जापानीज़ ने बोनसाई ट्री बनाना स्टार्ट किया, राइट. पहले ये वर्ड नहीं था. सो द वर्ड इज़ ऑफ जापानीज़ ओरिजिन बट द आर्ट इज़ एक्चुअली चाइनीज़. सो जो कला है वो चाइनीज़ है बट वर्ड जो है वो जापानीज़ है, राइट. बट yes, there is difference. Chinese, as I said, these people, they used to make miniature landscapes. छोटे लैंडस्केप्स बनाते थे. उसको देख के जापानीज़ लोगों ने they started making bonsai tree, that is small sized tree, and this term then became famous, right. Now bonsai has become part of domestic and artistic life of city men, right. अब आजकल तो आप नर्सरीज में भी जाओगे तो you can easily see bonsai trees, right. So therefore we can say that nowadays so this has become a domestic a part of domestic and artistic life of um, modern people, right. And in Japan actually there is no house without bonsai. जापान में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे bonsai नहीं होता. So this is such an important part of their life, right. But now this bonsai has become famous and it has reached almost all over the world, and we can also see in India in many nurseries bonsai trees are supplied, right, and people take it as indoor plants or garden elements, right. So this is bonsai. Now we move towards understanding that bonsais are how classified. bonsai का classification कैसे होता है. मेनली इनको 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट इज़ मिनिएचर bonsai. So bonsai that is of very small size, that is less than 15 centimeter. Small bonsai which is of 32 to 60 centimeter, and big bonsai that is of more than 60 centimeter. So bonsais are mainly classified into these 3 groups. तो मिनिएचर bonsai जो है वो सबसे छोटा होता है, 15 सेंटीमीटर से भी कम उसकी साइज़ होती है. स्मॉल bonsai उससे थोड़ा बड़ा होगा, दैट इज़ 32 to 60 सेंटीमीटर, एंड बिग bonsai जो है वो it is more than 60 centimeter, right. So in this way we can classify based upon the size into 3 groups of bonsai, right. Now coming to the point of bonsai styles. So there are actually many styles of bonsai. These are formal upright, informal upright, slanting, windswept style, twins trunk style, multi trunk, raft, forest or group, landscape, broom, cascade, semi cascade, rock growing, and bungee, right. So all of these are bonsai styles that we are going to understand one after the another, starting with the very first one, that is the formal upright style, right. तो formal upright style जो है ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ bonsai है. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ bonsai, एंड एज द नेम सजेस्ट, जैसे आप नेम ही देख सकते हो, फॉर्मल अपराइट मतलब स्ट्रेट. सो दिस इज़ ग्रोन स्ट्रेट. ये ऐसा bonsai है जिसको स्ट्रेट ग्रो करते हैं. टिप ऑफ द ट्री एंड रूट फॉल इन वन वर्टिकल लाइन. दिस इज़ वन वर्टिकल line. Actually this is a spelling mistake actually. So the tip of the tree and root fall in one vertical line. मतलब ट्री का जो टिप है ऊपर का पार्ट और रूट दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आता है, राइट. तो उसको बोलते हैं फॉर्मल अपराइट स्टाइल. द रेस्ट ब्रांचेस आर कोन शेप्ड, स्फेरिकल और हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस. और बाकी के जो ब्रांचेस हैं वो या तो कोन शेप में होगा, या तो स्फेरिकल होगा, या तो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होंगे. सो आप जैसे देख सकते हो ये है फॉर्मल अपराइट स्टाइल, जहाँ पे द ट्रंक इज स्ट्रेट. ट्रंक जो है
वो स्ट्रेट है, मतलब मेन ट्रंक जो है वो स्ट्रेट है, और फिर इसका एक्चुअल में जो ब्रांच का शेप है वो कोन शेप है, राइट. सो दिस इज़ अ कोन शेप्ड formal upright style, but it could be spherical also and it could be horizontal branches, though the branches here are horizontal. But what we have to understand here is that in formal upright style the tip of the tree and the root, they fall in one vertical line, मतलब एक ही line में टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द ट्री एंड रूट दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आते हैं. सो दिस इज़ परफेक्टली स्ट्रेट, जैसे हम देख सकते हैं ये परफेक्टली स्ट्रेट होता है. एंड इट हैज़ अ टेपर्ड ट्रंक. टेपर्ड ट्रंक का मतलब क्या होता है कि नीचे का जो ट्रंक है वो थिक है और ऊपर का जो ट्रंक है वो थिन है, मतलब थिक से थिन की तरफ जाता है. सो देयरफॉर दिस इज़ अ टेपर्ड ट्रंक. प्लांट्स डोंट गेट मच स्ट्रेस. अब ये ऐसा स्टाइल है जहाँ पे प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मिलता. अब ये इसलिए बोला है क्योंकि बोनसाई जो है वो बनाने के लिए वायरिंग का यूज़ होता है. सो व्हेन वी यूज़ वायरिंग, सो दैट मीन्स दैट वी आर गिविंग प्लांट सर्टन काइंड ऑफ स्ट्रेस. हम वायरिंग करते हैं उसका मतलब है कि प्लांट के ब्रांचेस को हम स्ट्रेस दे रहे हैं, उसे हम एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो बट क्योंकि ये सिंपल स्टाइल है, इसमें स्ट्रेट ही रखना है, तो इसमें डायरेक्शन का ज़्यादा वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ. एंड देयरफॉर इन दिस काइंड ऑफ बोनसाई प्लांट्स डोंट गेट मच स्ट्रेस, और इसलिए इसको बेसिक स्टाइल ऑफ बोनसाई भी बोलते हैं. क्योंकि अभी आप जैसे आगे हम देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट देर आर स्टाइल्स इन विच वेरी मच मोर वायरिंग इज ऑल्सो नीडेड, right. So therefore this is the basic style where there is not much stress for the plants. Now some of the plants that can be used for formal upright style is juniper, pine, spruce, maple. ये सब examples है plant के जिसमें हम formal upright style of bonsai बनाने की कोशिश कर सकते हैं. मतलब ये species ऐसे हैं जिनमें formal upright style easily हो सकता है. Now coming to the next second type of bonsai style which is informal upright style. ठीक है, तो informal upright style में क्या होगा, as the name suggests, upright तो है, straight है, but informal है. इसका मतलब कि ट्रंक का शेप straight नहीं होगा, but it would be like S shaped या फिर किसी भी और शेप में उसे कर्व्स दिए होंगे. So this mimics the tree in nature, grown in rough conditions. अब ये टाइप का जो बोनसाई है, what it will do, it will look like trees in nature that are grown in rough conditions. ये जो बोनसाई है ये ऐसे दिखेंगे जैसे अगर नेचर में ये ट्री होता तो जैसे रफ कंडीशन में ग्रो होता है कोई भी ट्री, तो वो कैसा दिखता है उसके जैसा ये वाला बोनसाई दिखता है, राइट. सो देर इज़ नो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली, मतलब ट्रंक जो है वो उसको एस शेप दिया जाता है यूजुअली. इन नेचर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ब्रांचेस दिस हैपन्स. अब नेचर में ऐसा कब होता है, एस शेप ट्रंक कब बन जाता है, जब ब्रांचेस टूट जाते हैं किसी भी रीज़न से, या तो विंड से टूट जाता है या तो एनिमल्स जो है वो तोड़ देते हैं, राइट. सो इन नेचर दिस हैपन्स नेचुरली बाय ब्रेकिंग ऑफ ब्रांचेस, तो ट्रंक में शेप्स आ जाते हैं. बट यहाँ पे इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल में हम क्योंकि खुद से ऐसा करते हैं, खुद से ही ऐसा शेप देना पड़ता है, तो इसलिए वायरिंग का यूज़ होता है एस शेप देने के लिए. नाउ सम ऑफ द कॉमन प्लांट्स जो इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल के लिए यूज़ होता है, दीज आर जापानीज़ मैपल, वाइट पाइन, क्रैब एप्पल, ट्राइडेंट मेपल, जूनिपर, बीच, पोमोग्रेनेट. ये सारे प्लांट्स जो हैं इसको इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे आप फिगर में देख सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल, जहाँ पे ट्रंक जो है वो
अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट था बट इन इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल देर इज़ एस शेप फॉर्म्ड, राइट, जिगजैग जा रहा है, एस शेप बन रहा है ट्रंक का। तो ये ट्रंक का शेप ऐसे ही नहीं बन जाएगा, यहाँ पे वायरिंग का यूज़ होता है, वी यूज़ वायरिंग सो दैट द शेप कैन बी गिवन टू द ट्रंक। नाउ ये एक एग्जाम्पल है फॉर्मल अपराइट स्टाइल का, जैसे आप देख सकते हो स्ट्रेट है और यहाँ पे कोन शेप्ड का स्ट्रक्चर दिया गया है, राइट। सो दिस इज़ एक्चुअली एन एल्म प्लांट. So this is an example of formal upright style, and as you can see the next figure, this is an example of informal upright style. आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो branches है इसको S शेप या तो फिर कोई भी शेप देने की कोशिश की है ताकि ये एकदम स्ट्रेट नहीं लगता, राइट. So this is informal upright style. So I hope कि ये दो स्टाइल्स आपको क्लियर है. अब हम नेक्स्ट थर्ड स्टाइल में जाते हैं विच इज़ सेमी कास्केड स्टाइल, राइट. सो दिस टाइप ऑफ बोनसाई विल हैव अ ट्रंक दैट ग्रोज अपराइट ब्रीफली. इसका ट्रंक कैसा होगा, जो कुछ देर तक कुछ हाइट तक स्ट्रेट जाएगा और फिर देन इट विल बेंड स्लाइटली डाउनवर्ड और टू द साइड. सो कुछ हाइट तक उसका ट्रंक स्ट्रेट जाएगा एंड देन वो बेंड हो जाएगा डाउनवर्ड और टू द साइड. सो इट विल नॉट एक्चुअली रीच द बॉटम ऑफ द पॉट. ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस फिगर. ये फिगर आप देख के समझ सकते हो क्या बोला है फर्स्ट लाइन में. इट विल हैव अ ट्रंक दैट ग्रोज अपराइट ब्रीफली, मतलब ट्रंक ऐसा होगा जो कुछ हाइट तक स्ट्रेट जाएगा, अपराइट जाएगा, देन इट विल बेंड स्लाइटली डाउनवर्ड और टू द साइड, और उसके बाद ये नीचे बेंड होने लगेगा साइड की तरफ. सो इट विल नॉट रीच द बॉटम ऑफ द पॉट, बट इसका जो ब्रांच है वो और नीचे नहीं जाएगा, बॉटम पॉट के बॉटम तक नहीं जाएगा, बट इस डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगेगा, राइट. सो इट विल नॉट रीच द बॉटम ऑफ द पॉट, पॉट के एकदम बॉटम तक नहीं जाएगा. एंड द ब्रांच इज एक्चुअली टॉप हैंगिंग ओवर द पॉट. ब्रांच जो होता है वो टॉप हैंगिंग होता है, मतलब ऊपर से हैंग करता है. सो आप देख सकते हो ये एक एग्जाम्पल है सेमी कास्केड स्टाइल का. थोड़ा कुछ हाइट तक स्ट्रेट जाता है एंड देन इट टेक्स अ बेंड हो जाता है टू द साइड्स, राइट. सो दिस इज़ अ सेमी कास्केड स्टाइल. इसको क्यों सेमी कास्केड बोलते हैं, क्योंकि कास्केड का मतलब होता है जब लाइक आप कभी कोई माउंटेन वाली जगह पे गए हो और वहाँ पे वाटरफॉल देखा है तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे गिरता है तो इस तरह का शेप बनता है, तो उसको कास्केड बोलते हैं, राइट. सो देयरफॉर इसको सेमी कास्केड बोलते हैं क्योंकि ये पूरा कास्केड नहीं है, ये ऊपर ये बेंड होता है और फिर इस तरफ स्प्रेड होने लगता है, राइट. सो इसको इसलिए सेमी कास्केड बोलते हैं. सो इसके एग्जाम्पल्स हैं ये सब: चाइनीज़ जूनिपर ट्री, जापानीज़ वाइट पाइन, माउंटेन पाइन, देन विस्टेरिया, क्राइसैंथेमम्स, ये सबको सेमी कास्केड स्टाइल ऑफ बोनसाई बना सकते हैं, राइट. सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी कास्केड स्टाइल ऑफ बोनसाई, and this requires longer training time compared to other basic bonsai styles. अब फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल जो हमने इसके पहले के पार्ट में देखा, तो उसकी कंपैरिजन में अब हम जो भी स्टाइल्स पढ़ेंगे वो सारे ही स्टाइल्स ऐसे होंगे जिनको बनाने के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, राइट. हम ऐसा सोचे कि हम खुद बनाने लगे तो बहुत चांसेस है कि जो भी हम बोनसाई बनाने जाएंगे वो सही नहीं बनेगा, राइट. सो अब से इससे आगे की जो भी स्टाइल है, ऑल ऑफ दीज स्टाइल्स, दीज आर एक्चुअली दे रिक्वायर अ लॉन्गर ट्रेनिंग बिकॉज वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है ऐसा बनाने के लिए, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. एंड देयरफॉर दीज कैन नॉट बी मेड easily. This requires hard work and training. Coming to the next type of style which is called cascade style. So this mimics a tree in nature.
that lives on a steep cliff and is bent downward. अब कास्केड स्टाइल किस टाइप के ट्री के जैसा लगता है? अगर नेचर में हम कोई ट्री देखें जो स्टीप क्लिफ यानी कि कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्लिफ है, राइट, जहाँ पे डेप्थ है और वहाँ से उसके ब्रांचेस बेंट होने लगते हैं, तो उसको इस टाइप का जो ट्री है वो हमें इस बोनसाई जैसा लगेगा, राइट. सो दिस रीचेज द बॉटम ऑफ द प्लांट्स कंटेनर. अब सेमी कास्केड और कास्केड ये दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि कास्केड स्टाइल जो है उसका ब्रांच भी ऐसे ही बेंट होता है बट नीचे तक जाता है. सो मोस्ट ऑफ इट्स फोलिएज विल बी बिलो द सॉइल सरफेस. तो ज़्यादातर इसका जो भी फोलिएज होगा, मतलब पत्ते जो भी होंगे, वो सॉइल के सरफेस के नीचे होंगे. द ट्रंक विल फॉर्म अ एस शेप ऑन द वे डाउन. और ट्रंक जो है वो एस शेप बनाएगा. सो हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये जो है ये कास्केड स्टाइल है, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेट जा रहा है ट्रंक और फिर बेंट होके एकदम नीचे तक पॉट के एंड तक पहुंच जाता है, तो इसको कास्केड स्टाइल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट कास्केड, कंप्लीट वाटरफॉल जैसा लगता है, जबकि सेमी कास्केड जो है वो हाफ वाटरफॉल जैसा लगता है, राइट. सो और ये एक एस शेप बनाता है. अगर आप ध्यान से देखो तो दिस फॉर्म्स एन एस शेप, राइट. एंड दिस रीचेज द बॉटम ऑफ द प्लांट्स कंटेनर. मतलब प्लांट का जो कंटेनर है, पॉट है, उसके नीचे तक पहुंचता है इसका ब्रांच, राइट. सो दिस इज़ अबाउट सेमी कास्केड एंड कास्केड स्टाइल. अब ये आप देख सकते हो, ये एक कास्केड स्टाइल है, तो इसका ब्रांच जो है वो बहुत नीचे तक जा रहा है, ठीक है, पॉट के भी नीचे चला गया है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ कास्केड स्टाइल ऑफ bonsai. So now moving towards the next style of bonsai, which is bunjingi or literati, right. So bunjingi में क्या होता है that more than 3/4 of the trunk has no branches. मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाए ट्री में तो 3/4 जो ट्रंक है उसमें ब्रांच ही नहीं होंगे कोई भी. सो द ट्रंक ग्रोन स्लाइटली स्लैंटिंग. ट्रंक जो है वो थोड़ा स्लैंटिंग होता है और 3/4 पार्ट में कोई ब्रांचेस नहीं होते. देर आर नो ब्रांचेस इन द 3/4 पार्ट ऑफ द ट्रंक. एंड ऑल्सो द ट्रंक इज लिटल स्लैंटिंग. मतलब स्लैंटिंग मतलब आड़ा. सो ऑल ब्रांचेस आर एट द टॉप. तो जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारे ट्री के टॉप पे होते हैं. सो दिस इज़ अ नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ ट्री. ये एक नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल का बोनसाई है, क्योंकि हम नेचर में अक्सर इस टाइप का ट्री बहुत कम ही देखते हैं, राइट. हम ऐसा ट्री देखते हैं जहाँ पे ब्रांचेस नीचे से स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पे ब्रांचेस जो है वो सब ऊपर ही है, तो इसको बंजिंगी बोलते हैं. आप देख सकते हो कि ज़्यादातर ट्रंक जो है दैट इज़ विदाउट ब्रांचेस. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बंजिंगी. और इसको हम इनफॉर्मल अपराइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है ट्रंक का वो इनफॉर्मल है, राइट. और ऊपर सारे ब्रांचेस हैं, तो इसको हम बंजिंगी बोल सकते हैं और लिटराटी बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज विंड स्वेप्ट स्टाइल, राइट. सो व्हाट इज विंड स्वेप्ट स्टाइल? दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री दैट मस्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव. सो ये ऐसे ट्री का रिप्रेजेंटेशन है जो नेचर में अगर उसे सर्वाइव करना है तो स्ट्रगल करना पड़ता है. अब ये किस टाइप के स्ट्रगल की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं वो ओपन में होते हैं, सो दे हैव टू फेस विंड. उनको विंड फेस करना पड़ता है, स्टॉर्म फेस करना पड़ता है, रेन फेस करना पड़ता है, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स, ठीक है. तो विंड स्वेप्ट स्टाइल का जो बोनसाई है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे ट्री को जिसे सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. सो दिस रेप्लिकेट्स द लुक ऑफ अ ट्री बीइंग एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड. तो ये ऐसे ट्री का रेप्लिका है जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड पे एक्सपोज हुआ है,
राइट। सो ये ऐसे ट्री का रेप्लिका है जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड को एक्सपोज हुआ है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड को एक्सपोज होगा तो क्या होगा कि जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है तो ब्रांचेस सारे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड विंड स्वेप्ट स्टाइल। ब्रांचेस विल ग्रो ओनली इन सेम डायरेक्शन, सारे ब्रांचेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। सो एज यू कैन सी हियर इन द फिगर, ये इसके सारे ब्रांचेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग विंड जो है वो इस डायरेक्शन से इस तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये सारे ब्रांचेस एक तरफ हो गए हैं। बट दिस इज़ अ बोनसाई एक्चुअली, इसको इस तरीके से क्रिएट किया गया है, ठीक है। इस पे विंड का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बट इसको ऐसे बताया गया है जैसे विंड का इस पे इफ़ेक्ट हुआ है। तो इसके लिए इसके सारे ब्रांचेस जो है दिस हैज़ बीन वायर्ड, दिस हैज़ बीन वायर्ड इन सेम डायरेक्शन। ऐसे वायरिंग की है कि इसका डायरेक्शन जो है सबका एक साइड में हो जाता है। सो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वायरिंग वर्क, राइट। जैसे मैंने बताया दिस रिक्वायर्स वायरिंग, ये ऐसे ही नहीं होगा, इसको वायरिंग देंगे तभी ये शेप आएगा। सो देयर इज एक्चुअली नो ब्रांचेस ऑन द टॉप, एकदम टॉप में कुछ ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होंगे, बट साइड्स में सारे ब्रांचेस होंगे। देयर इज स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। अब ऑब्वियस है कि जब सारे ब्रांचेस एक साइड पे हो जाते हैं, व्हेन ऑल द ब्रांचेस आर ऑन द सेम साइड, देयर इज़ अ स्ट्रेस हियर ऑन द रूट। क्योंकि ट्री को बैलेंस करना है और सारे ब्रांचेस एक साइड में हैं, तो सारा वेट इस तरफ चला जाएगा, और इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम चाहिए जो अच्छे से फैले पूरे कंटेनर में, तो ट्री जो है वो स्टेबल रहेगा, राइट। क्योंकि स्ट्रॉन्गर द रूट देन स्ट्रॉन्गर वुड बी द ब्रांचेस। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल का बोनसाई है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, राइट। हम ऐसे ड्रॉ करके बता सकते हैं कि विंड स्वेप्ट स्टाइल मतलब सारे ब्रांचेस एक साइड में, बिकॉज डायरेक्ट विंड का डायरेक्शन जो है वो एक साइड से है। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ये सिर्फ बताता है कि ये उस टाइप का ट्री है जो स्ट्रॉन्ग विंड को एक्सपोज हुआ है, बट ये द बोनसाई हैज़ नॉट बीन एक्सपोज्ड टू विंड। बोनसाई को हमने विंड पे एक्सपोज नहीं किया है, ये तो हमने वायरिंग करके इस तरीके से शेप दिया है। बट दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री इन नेचर दैट इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। ये सिर्फ बताता है उस ट्री का रिप्रेजेंटेशन है जो स्ट्रॉन्ग विंड के विंड में एक्सपोज हुआ है, ठीक है। सो दिस इज बंजिंगी और लिटराती और विंड स्वेप्ट स्टाइल। Now coming to the next type of bonsai which is double trunk और twins trunk style. So ये हम नेम से ही पता लगा सकते हैं, डबल ट्रंक मतलब दो ट्रंक, या तो ट्विंस ट्रंक मतलब एक जैसे दो ट्रंक, राइट। सो फीचर्स टू ट्री ट्रंक्स ग्रोइंग फ्रॉम वन रूट सिस्टम। अब ये बोनसाई कैसा है, एक ही रूट सिस्टम में से दो ट्रंक अगर आते हैं, दो ट्रंक है बोनसाई में, तो इट मीन्स that is a double trunk style, and the point where two trunks meet must be a sharp V shape. तो जहाँ पे दो ट्रंक मीट करते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे V शेप होता है। तो आप इस फिगर को देख के समझ सकते हो कि ये एक ही रूट में से बना है, एक ट्रंक है और फिर इसमें से दो ट्रंक निकलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्विंस ट्रंक। और इसमें से ये दो मेन ट्रंक है और मेन ट्रंक में से और छोटे छोटे ट्रंक्स भी निकल सकते हैं, ब्रांचेस, राइट। सो दिस इज़ द डबल ट्रंक और ट्विंस ट्रंक स्टाइल। स्मॉलर ट्रंक विल ग्रो आउट ऑफ अ लार्जर ट्रंक अबाउ द ग्राउंड। सो वही पॉइंट जो मैंने कहा, लार्जर ट्रंक जो है, ये लार्जर ट्रंक्स है ये दोनों, ठीक है, उसमें से स्मॉलर ट्रंक्स और ग्रो हो सकते हैं। Larger trunk is thicker and upright and the smaller trunk is thinner and slanted, right. So larger trunks is thicker मतलब larger trunk जो है वो thick है and upright है, straight है,
एंड स्मॉलर ट्रंक जो है दैट इज़ थिन. द स्मॉलर ट्रंक्स आर थिन, मतलब इनकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है. सो नो ब्रांचेस शुड ग्रो इन बिटवीन द ट्रंक्स. अब दिस इज़ अ पॉइंट विच सेज दैट कि ये जो दो ट्रंक है इनके बीच में कोई ब्रांचेस ग्रो नहीं होना चाहिए. अब बोनसाई इज़ एन आर्ट एंड सो अगर कोई ब्रांचेस ग्रो होते हैं तो इट हैज़ टू बी रिमूव्ड. उसको रिमूव करके प्रॉपरली इनको वायरिंग देनी पड़ती है ताकि दो ही ट्रंक दिखे, राइट. सो इन दोनों के बीच में कोई ट्रंक डेवलप होने नहीं देना है. देन it has wide root system growing in all direction to support the two trunks. अब दो trunks निकल रहे हैं. So just a minute, I need to put the power on so that the laptop does not get discharged, right? Yeah, now this is okay. सो वाइड रूट सिस्टम होता है इसमें क्योंकि दो ट्रंक है तो दोनों को अच्छे से बैलेंस करने के लिए एक पूरा स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम चाहिए जो इसको सपोर्ट कर सके. एंड एडवांस्ड ट्रेनिंग इज़ नीडेड टू क्रिएट द डिस्टिंक्ट वी शेप. और वी शेप देने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि everyone cannot understand that how to make a V-shaped trunk, and sometimes two separate plants are kept together, then it is called twining, right. अब इसमें क्या था कि एक ही रूट में से दो ट्रंक निकलते हैं, ठीक है, तो इसको तो हम डबल ट्रंक बोल सकते हैं. अब पर ट्विंस ट्रंक किसको बोलते हैं? इसको भी ट्विंस ट्रंक बोल सकते हैं. बट व्हाट इज ट्वाइनिंग? दैट टू सेपरेट प्लांट्स आर केप्ट टुगेदर. मतलब दो अलग प्लांट को एक साथ एक पॉट में रख दिया, मतलब दो अलग प्लांट सेम ही स्पीशीज़ के उसको पॉट में रख दिया, तो वी कैन कॉल इट एज ट्विंस ट्रंक. सो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो पॉट है इसमें दो अलग प्लांट रखे हैं. ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट, बट स्पीशीज़ सेम है, बट दो ट्रंक्स यूज़ किए हैं, तो इसलिए इसको ट्विंस ट्रंक स्टाइल भी बोलते हैं. तो इसके एग्जांपल्स है जापानीज़ बीच या जापानीज़ मेपल. नाउ नेक्स्ट जो है वो है मल्टी ट्रंक स्टाइल. सो मल्टी ट्रंक आप नाम से समझ गए होंगे कि बहुत सारे ट्रंक्स होते हैं, राइट. डबल ट्रंक में दो ट्रंक्स थे. अब मल्टी ट्रंक स्टाइल में when there is many trunks then we can call it as multi trunk. So features three or more trunks being grown from one root system. एक root system में से तीन या उससे ज़्यादा trunks if we use then it can be said as multi trunk style of bonsai. So tree trunks are typically not identical. अब यहाँ पे जो trunks होंगे वो सब एक जैसे नहीं होंगे. हो सकता है कि सारे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, सबके शेप्स अलग हो, राइट. सो दीज आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब दीज वोंट बी alike, these won't be like same as each other. So they can be of different heights and they can vary in thickness. सब ट्रंक्स की हाइट अलग हो सकती है और सबका थिकनेस भी वेरी कर सकता है, राइट. सो थिकनेस और हाइट सारे जितने भी ट्रंक्स हैं सबकी अलग हो सकती है. एंड द मोस्ट डेवलप्ड ट्रंक विल फॉर्म द टॉप. और सारे ट्रंक में से सबसे ज़्यादा जो ट्रंक डेवलप हो गया होगा, जो मेन ट्रंक जैसा दिखेगा, वो जो है टॉप बनाता है ट्री का. सो डायग्राम में से समझ सकते हैं कि बहुत सारे ट्रंक्स है यहाँ पे, राइट. और ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रंक्स आइडेंटिकल हो, एक जैसे होना ज़रूरी नहीं है. सबकी हाइट वेरी कर सकती है, थिकनेस भी अलग हो सकता है, राइट. एंड द मोस्ट डेवलप्ड ट्रंक विल फॉर्म द टॉप. अब आप जैसे देख सकते हो बीच वाला जो ट्रंक है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, सबसे ऊपर पहुँच गया है, तो ये बोनसाई का टॉप बनाएगा, राइट. नाउ इट हैज़ अ वाइड रूट सिस्टम ग्रोइंग इन ऑल डायरेक्शंस.
अब इसका रूट सिस्टम जो है वो वाइड होगा, क्योंकि इतने सारे ट्रंक है तो उसको स्टेबली सपोर्ट करने के लिए पॉट में प्रॉपरली रूटिंग होना ज़रूरी है, तो इसका जो रूट है वो वाइड होगा सारे डायरेक्शंस में, तो इसको मल्टी ट्रंक स्टाइल बोलते हैं. सो द रूट विल बी वाइड टू सपोर्ट द all the trunk properly so that the bonsai is maintained, right? Now the examples are Japanese beech or Japanese maple. These are not the only example. मैंने जितने भी styles बताए वो सब में जो भी examples दिए, ज़रूरी नहीं है कि यही examples हो, और भी experiments हो सकते हैं, और भी examples possible हो सकते हैं जिससे हम bonsai बना सकते हैं. तो ये एक एग्ज़ाम्पल है मल्टी ट्रंक स्टाइल का. तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे ट्रंक्स हैं और सारे ट्रंक्स अलग थिकनेस है, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड सबकी हाइट अलग है, राइट? सो दिस इज़ मल्टी ट्रंक स्टाइल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टाइल ऑफ बोनसाई, दैट इज़ फॉरेस्ट स्टाइल. सो अब फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, तो उसी तरह इस बोनसाई में दिस इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल ट्रीज़. यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसको फॉरेस्ट स्टाइल बोलते हैं. द स्टाइल इज़ इंटेंडेड टू रेप्लिकेट अ नेचुरल फॉरेस्ट. मतलब एक नेचुरल फॉरेस्ट कैसा लगता है उसका रेप्लिका है ये, मतलब उसके जैसा दिखे ऐसी कोशिश इस बोनसाई में करते हैं. ट्रीज़ आर प्लांटेड इन अ स्टैगर्ड पैटर्न, मतलब अलग अलग तरीके से ट्री को प्लांट करते हैं. These are planted at different distances for a more natural look. और सभी ट्री को अलग अलग डिस्टेंस में प्लांट करते हैं एक नेचुरल लुक देने के लिए. तो आप जैसे देख सकते हो ये फॉरेस्ट स्टाइल का डायग्राम है. पॉट है, उसमें बहुत सारे ट्रीज़ प्लांट कर दिए हैं, ठीक है? एक ट्री नहीं है, ये सब बहुत सारे ट्रीज़ हैं. मे बी सेम स्पीशीज़ के हैं सारे, बट क्योंकि फॉरेस्ट जैसा दिखे इसलिए इस तरीके से अलग अलग मल्टीपल ट्रीज़ को यूज़ किया है. सो जो ट्री का ट्रंक थिक होगा उसको बीच में रखते हैं एंड विथ थिनर ट्रंक्स द ट्रीज आर केप्ट एट साइड्स. सो ट्रीज विथ थिकर ट्रंक आर केप्ट इन द मिडल एंड ट्रीज विथ थिनर ट्रंक आर केप्ट एट द साइड्स. मतलब थिक ट्रंक वालों को बीच में रखते हैं और थिन ट्रंक वालों को साइड्स में रखते हैं. तो एग्जाम्पल्स आर जापानीज बीच, जापानीज मेपल. तो आप ये डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ठीक है, और एक फॉरेस्ट जैसा लुक देने का ट्राई किया है, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज़ द राफ्ट स्टाइल. सो इन राफ्ट स्टाइल द ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम अ क्रैक्ड ट्री. अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचेस जो है वो क्रैक्ड ट्री में से ग्रो होता है. सो दिस मिमिक्स अ ट्री इन नेचर दैट हैज़ बिन डैमेज्ड बाय स्टॉर्म और विंड. अब ये जो है ऐसे ट्री को रिप्रेजेंट करता है जो स्टॉर्म या विंड से डैमेज हो गया है, ठीक है. एंड न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द फॉलन ट्रंक. तो क्या होगा अगर नेचर में कोई ट्री ऐसा है जो स्टॉर्म या विंड से डैमेज हो गया है, तो उसका ब्रांच गिर जाएगा. तो ट्रंक गिर गया तो उस गिरे हुए ट्रंक में से नया रूट बनता है और नया ब्रांच बनता है. सो द ब्रांचेस बिगिन टू ग्रो वर्टिकली फ्रॉम द फॉलन ट्रंक. मतलब जो ट्रंक गिर गया उसमें से नए ब्रांचेस आने लगते हैं, तो उसको राफ्ट स्टाइल बोलते हैं. ऐसा नेचर में होता है, राइट? तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए, उसके जैसा दिखाने के लिए राफ्ट स्टाइल का बोनसाई बनाते हैं. तो क्या होता है कि विद टाइम न्यू ट्री इज़ ग्रोन एंड रिमेन्स कनेक्टेड टू द फॉलन ट्रंक. तो जो ट्रंक गिर गया उसमें से नए ट्री, नए प्लांट बनने लगते हैं और दीज रिमेन कनेक्टेड टू द फॉलन ट्रंक. पर हम देख सकते हैं कि वो गिरे हुए ट्रंक में से ही जुड़ा हुआ होता है. जैसे कि इन दिस फिगर दिस इज़ अ पॉट, राइट? ये पॉट है. अब ये जो डार्क ब्राउन आपको दिख रहा है ये फॉलन ट्रंक है. इस ट्रंक में से और नए प्लांट्स, नए ट्रंक्स बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं राफ्ट स्टाइल. सो आप देख सकते हो कि ये एक एग्जाम्पल है राफ्ट स्टाइल का.
ये पूरा जो है ये फॉलन ट्रंक है, इसमें रूटिंग हो गई और फिर इसमें से नए और ब्रांचेस आने लगे। तो ऐसा राफ्ट स्टाइल जो है वो कैसे बनाते हैं? राफ्ट स्टाइल का जो बोनसाई है उसको बनाने के लिए अ यंग ट्री विथ मैनी साइड ब्रांचेस इज टेकन। एक ट्री लेते हैं जिसमें बहुत सारे साइड ब्रांचेस हैं। ऑल द ब्रांचेस आर ब्रॉट टू द सेम साइड, तो उसके सारे ब्रांचेस को एक ही साइड पे ले आते हैं, या तो ऑपोजिट ब्रांचेस आर रिमूव्ड। सो ओके, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि जैसे कि कोई ट्री है, राइट, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, दोनों तरफ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऐसा ट्री लेते हैं, उसके बाद ऑल ब्रांचेस आर ब्रॉट टू द सेम साइड, या तो ऑपोजिट ब्रांचेस को रिमूव कर देते हैं, या तो क्या करेंगे, ये सारे ब्रांचेस को एक साइड पे ले आएंगे वायरिंग करके, ठीक है, सबको एक साइड पे ले आए, या तो फिर इन ऑपोजिट ब्रांचेस को रिमूव ही कर दिया, निकाल दिया, या तो इसको निकाल दिया, तो वो भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ट्रंक विदाउट ब्रांचेस इज पील्ड एंड रूट हार्मोन इज अप्लाइड। अब जो पार्ट ट्रंक का वो ब्रांचेस के बिना है उसको पील कर देते हैं, मतलब इस साइड को पील करके रूट हार्मोन यानी कि उसका स्किन निकाल के यहाँ पे रूट हार्मोन अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रूट हार्मोन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे रूटिंग होने लगेगा। साइड ऑफ द ट्रंक विथ रूट हार्मोन इज बरीड, और ये साइड जहाँ पे ब्रांच नहीं है उसको सॉइल में बरी कर देते हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सॉइल वाला पार्ट है, राइट। तो सॉइल में इसको रूट हार्मोन वाला जो है उसको सॉइल में बरी करते हैं और ब्रांचेस ऊपर रहते हैं। एंड ट्रंक हैविंग ब्रांचेस आर केप्ट अपवर्ड, ट्रंक जहाँ पे ब्रांचेस है उसको ऊपर रखते हैं। सो इन दिस वे इसमें से नए ब्रांचेस डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ राफ्ट स्टाइल ऑफ बोनसाई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप विच इज़ ब्रूम स्टाइल। ब्रूम स्टाइल मतलब आप नाम से समझ सकते हो, इट हैज़ अ स्ट्रेट एंड अपराइट ट्रंक, मतलब सीधा और अपराइट ट्रंक है। ब्रांचेस दैट ग्रो इन ऑल डायरेक्शन स्टार्ट अबाउ 1/3 ऑफ द वे अप, मतलब ऐसे ब्रांचेस होंगे जो चारों डायरेक्शन में जाएंगे, एंड 1/3 ऑफ द वे अप मतलब 1/3 ट्रंक का 1/3 जो पार्ट है उससे ऊपर ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगे। लुक्स अमेजिंग ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स। अब ऐसा जो स्टाइल है वो कोल्डर मंथ्स में ज़्यादा अच्छा लगता है, वो क्यों वो मैं समझाऊंगी अभी। ब्रांचेस आर प्रून्ड एंड टू लुक लाइक अ ब्रूम। तो यहाँ पे ब्रांचेस की प्रूनिंग कैसे होती है, वायरिंग कैसे होती है, जैसे वो ब्रूम के जैसे, मतलब जो बाहर जो झाड़ू यूज़ होता है ना लाइक पब्लिक प्लेसेस में, उसके जैसा दिखे, उसके लुक के लिए। टॉप ऑफ द ट्री इज़ प्रून्ड टू अ राउंड शेप टू क्रिएट अ क्राउन। ट्री का जो टॉप है उसको प्रून करके राउंड शेप दिखे क्राउन के जैसा, मतलब एक राउंड शेप दिखे प्रॉपर, उसके लिए ब्रूम स्टाइल का, उसके लिए ब्रूम प्रूनिंग किया जाता है ताकि ब्रूम स्टाइल में दिखे। सो इस तरीके से दिखता है, और ये एग्जाम्पल है ब्रूम स्टाइल का, जैसे आप देख सकते हो कि प्रूनिंग इस तरीके से की है कि ब्रूम जैसा दिखता है। और जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस लुक्स अमेजिंग ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स, मतलब ठंडे मंथ्स में अच्छा लगता है क्योंकि इसके सारे पत्ते निकल जाते हैं, तो दिस लुक्स ब्यूटीफुल, राइट। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल्स है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टाइल विच इज़ स्लैंटिंग स्टाइल। सो ट्री ट्रंक स्लैंट्स ड्रामेटिकली इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे ट्री ट्रंक जो है वो एक डायरेक्शन में बेंड होता है, स्लैंटिंग में होता है। सो दिस स्टाइल इज सीन इन नेचर व्हेन अ ट्री इज़ ग्रोइंग इन अ शेडी एरिया। तो ऐसा स्टाइल हम नेचर में कब देख सकते हैं, जब ट्री जो है वो शेडी एरिया में ग्रो होता है। तो शेडी एरिया में क्या होता है कि क्योंकि सनलाइट नहीं मिलता तो ट्री सनलाइट लेने के लिए बेंट हो जाता है, राइट। सो
tapered single trunk in which the base of the trunk is thicker. अब यहाँ पे ट्रंक का बेस थिक होता है और सिंगल ट्रंक होता है और टॉप जो होता है वो टेपरिंग मतलब थिन होता है. सो एज यू कैन सी दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लैंटिंग स्टाइल. एक स्लैंटिंग में होता है, राइट, बेंड होता है, आड़ा होता है. और ऐसा नेचर में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट को अगर सनलाइट नहीं मिलता तो प्लांट बेंड हो जाता है. और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्लैंटिंग टाइप के, राइट. सो it grows at an angle of about 60 to 80 degree. Not necessarily 60 degree, 80 degree या 45 degree पे slanting angle बनता है. So as you can see this is an example. ये एक थोड़ा सा slanting create किया है, तो this is slanting style of bonsai, right. Coming to the next type of bonsai which is landscape style, right. तो landscape is when many plants of different species are planted together. जब different species के बहुत सारे plants को एक साथ plant करते हैं एक landscape का look देने के लिए, तो उसको landscape style बोलते हैं. This provides the look of a landscape. A look of different landscape is given. मतलब अलग अलग टाइप का landscape का लुक दिया जा सकता है. अब ये जो है जैसे दिस इज़ अ लैंडस्केप स्टाइल ऑफ बोनसाई. ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, एक लैंडस्केप, एक घर का लैंडस्केप जैसा बनाने का ट्राई किया है. दीज आर बोनसाई ट्रीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग टाइप के ट्रीज यूज़ करके एक लैंडस्केप बोनसाई बनाने का कोशिश किया है, राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड लैंडस्केप. इस तरीके से अलग अलग लैंडस्केप बोनसाई स्टाइल भी बना सकते हैं, right. Coming to the next type of and the last type of bonsai which is rock growing bonsai. So these are bonsai that are grown on different types of rock. अब यहाँ पे rock के ऊपर अलग अलग टाइप के जो रॉक है उसके ऊपर अगर बोनसाई ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं रॉक ग्रोइंग बोनसाई. अब इसमें दो टाइप्स होते हैं, रूट ओवर रॉक एंड रूट इन रॉक. तो ये एक एग्जाम्पल है रॉक ग्रोइंग बोनसाई का. तो ये जो है दिस इज़ रूट ओवर रॉक. रूट ओवर रॉक मतलब रूट जो है वो रॉक के ऊपर है, राइट. सो द बोनसाई इज़ रूट ओवर रॉक टाइप ऑफ बोनसाई. अब रूट इन रॉक कैसा होगा, जिसका रूट रॉक के अंदर होगा, तो उसको बोलते हैं रूट इन रॉक टाइप ऑफ बोनसाई. बट ये वाला जो है दिस इज़ रूट ओवर रॉक टाइप ऑफ बोनसाई, right. So this is it about the styles of bonsai. I think this is easy and आप लोग डायग्राम्स देखकर ही समझ सकते हो कि ये किस टाइप के स्टाइल्स है. मोस्ट ऑफ द हम नेम से ही समझ सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम नेम इटसेल्फ दैट विच टाइप ऑफ बोनसाई इट वुड बी. बट स्टिल अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, राइट. आई विल क्लियर इट फॉर यू. एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टाइल्स ऑफ बोनसाई. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मेथड्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से बोनसाई को एक्चुअली बनाया जाता है, राइट. सो दिस इज़ टू बी कंटिन्यूड. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट फॉर टुडे वी कीप इट दिस मच. कुछ भी डाउट है तो क्लियर करना, राइट. या सो दैट इज़ इट. बट क्योंकि आप लोग यहाँ पे हो एंड अगर आपको लगता है कि जो भी लेक्चर है वो आपको यूज़फुल रहा है और फ्यूचर में भी यूज़फुल रहेगा, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो ही करना, राइट. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी लेक्चर को लेके तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. यस. या सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.